Due to some technical problem, I could not make video. So now I'm again explaining this question because I have done this question in our notebook. So see this question. I'm reading from the book. Question number second, part first. For which value of a and b does the following parabolic equations have infinite number of solutions? 2x plus 3y equal to 7, and second equation a minus b x plus a plus b y equal to 3a plus b minus 2. In cross multiplication method, we learnt in right hand side always 0. Any value we can't take in right hand side, so all the values will be shift to left hand sides, and right hand sides will be always 0. So this 7 will be shifted to left hand side, and this whole value 3a plus b minus 2 is always also shifted in left hand side. So equation become, please see, 2x plus 3y minus 7 equal to 0, equation 1, and a minus b x plus a plus b y minus in bracket 3a plus b minus 2 equal to 0, equation second. Now I am writing here value of a1 b1 c1 a2 b2 c2. So please see, a1 is equal to 2, b1 equal to 3, and c1 equal to minus 7, and a2 equal to a minus b, b2 equal to a plus b, and c2 equal to minus in bracket 3a plus b minus 2. Now question में given हमको infinite many solution, so we will apply the condition for infinitely many solution. क्या condition है? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Now write the value of a1 b1 c1 a2 b2 c2 in the given formula. So in place of a1 b1 c1 a2 b2 c2, I am writing the values. So please see, 2 upon a minus b equal to 3 upon a plus b equal to minus 7 upon minus in bracket 3a plus b minus 2. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो नाउ आई एम टेकिंग टू मेंबर्स, दैट इज 2 upon a minus b equal to 3 upon a plus b. So cross multiply, so this a plus b multiply by 2, so this become 2a plus 2b. This a minus value multiply by 3, so value becomes 3a minus 3b. Now shifting value 3a from right to left hand side, and this 2b shifted from left to right side. So 2a minus 3a equal to minus 3b, and this 2b shift to right hand side, so it will become minus 2b. So this implies minus a is equal to minus 5b. So this minus is cancelled by this minus, so a equal to minus 5b. Got it? Now second third member, so 3 upon a plus b equal to 7 upon 3a plus b minus 2. See, now again on simplifying, so these 3 is multiplied by these values, that is 3a plus b minus 2. So 3 to just 6, 3 3 is 9a plus 3 1 is 3b, and 3 2 is 6 minus 6 is equal to 7a plus 7b. और मोर सिंप्लीफाइंग 9a, इस 7a को हम लेफ्ट में लाए तो माइनस का 7 हो गया, प्लस 3b, इस 7b को लेफ्ट में लाया माइनस का 7b हो गया, और जिस 6 को हम राइट में प्लस का हो गया 6. अब 9a माइनस 7a किया, 2 आया, माइनस 7b प्लस का 3b, दैट इज माइनस 4b इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया. अब देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 5b, हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है. तो इस ए के वैल्यू को ले जाकर हमें इस इक्वेशन में रख रहे हैं. सो 2 इंटू ए के प्लेस पे लिखा 5b माइनस 4b इक्वल टू 6. 5 टू जो 10b माइनस 4b इक्वल टू 6. सो 10b माइनस 4b दैट इज 6b इक्वल टू 6. और सिंप्लीफाई किया इसको तो b इक्वल टू 1, 6 1 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया वन टाइम. सो नाउ दिस वैल्यू b का हम ले जाकर ऑपोजिट इक्वेशन थर्ड में रखेंगे. सो इन प्लेस ऑफ b a का वैल्यू b का वैल्यू दिया हमने. सो a इक्वल टू 5 इंटू 1, दैट इज a इक्वल टू 5. सो इन दिस वे we get the value of a and b both. Next, second of second. So I am reading from book first, क्योंकि मैंने कॉपी में कर लिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम होने से सारा ये वीडियो इसका डिलीट हो गया, इसमें आपको इसी में से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. हमको के का वैल्यू निकालना जिसके लिए इक्वेशन का कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन. अब इक्वेशन देखना आप 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई इक्वल टू दे रखा है 2k प्लस 1. आपको मालूम राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो इस 1 को लेफ्ट में लाएंगे
तो 1 माइनस का हो जाएगा। और इसे जो 2k+1 इसको भी लेफ्ट में लाएंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और ब्रैकेट के आगे साइन माइनस लगा देंगे और राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो आप देखिए इक्वेशन ये देखो आप लिखी मैंने 3x+y-1 = 0, 2k-1 ब्रैकेट क्लोज बार x प्लस k-1 ब्रैकेट क्लोज बार y minus in bracket 2k+1 close equal to 0. In this way we will get value of a1 equal to 3, b1 equal to 1 and c1 equal to -1। देखिए आप a1 b1 c1 a2 b2 c2। So a2 equal to 2k-1, b2 equal to k-1 and c2 equal to minus in bracket 2k+1। हमको k का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है नो सॉल्यूशन की? देखिए फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2। So we will write the value of a1 b1 c1 a2 b2 c2 in the above formula। So 3/2k-1 equal to 1/k-1 and not equal to -1/- in bracket 2k+1। ये माइनस माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो गए। नाउ फर्स्ट टू टर्म को लिया हमने, तो 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 और फिर इन दो टर्म को ले रहे हैं तो 1/k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो 3k-3 इक्वल टू हो गया 2k-1। इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2k+1 इक्वल टू आ गया k-1। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो 3k-2k इक्वल टू -1 + 3। इधर चलेंगे तो 2k - k इक्वल टू -1 और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इन दिस 3k - 2k दैट इज k इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2। मतलब k इक्वल टू 2 होगा तो सिस्टम का क्या है नो सॉल्यूशन होगा, और k इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2 होगा तो इस सिस्टम का क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। In this way this question is completed। Now I am reading question 4th part first। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। इस लाइन का मतलब क्या है कि हॉस्टल में जो है मंथली चार्ज फिक्स है और जो दूसरे चार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज जितने वो फूड लेता है मेस में उसके हिसाब से बाकी चार्जेस है ना। हॉस्टल का चार्ज फिक्स है। वेन स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज़ टू पे ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges। Find the fixed charges and the cost of the food per day। अब देखिए आप, तो हम इसे फिक्स चार्ज को ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम एक्स। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। एक हॉस्टल का जो पार्ट जो मंथली पार्ट है जो है इसका कुछ फिक्स है। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन इज टेकन फूड इन द मेस। मतलब मंथली में से कुछ पार्ट जो उसका फिक्स है और बाकी चार्ज जो फूड लेता है उसके ऊपर डिपेंड है। एक स्टूडेंट ए जो फूड लेता है 20 दिन तक के लिए और उसको पे करना पड़ता है 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज स्टूडेंट बी जो है फूड ले रहा है 26 डेज़ के लिए तो इसको 1180 रुपीज़ देना पड़ रहे हैं हॉस्टल चार्जेस। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, ये दो चीज़ निकालना है। एक तो फिक्स चार्ज क्या है, एक तो फिक्स चार्ज और एक क्या है कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो इसमें सपोज कर लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज हॉस्टल चार्जेस क्या है, लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस क्या ले लेते हैं हम, हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू ₹X and the cost of the food per day, cost of food
पर डे, उसको हमने रुपीस वाई ले लिया, रुपीस वाई ले लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आएंगे हम, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापिस। कितना वेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, कितने रोज के लिए फूड ले रहा है? 20 days के लिए। सो शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, कितना देना पड़ रहा है उसको? तो फिक्स चार्ज तो कितना आ गया अपना? एक्स आ गया। वो कास्ट ऑफ फूड पर डे वाई है, तो 20 दिन तक फूड ले रहा है तो क्या आ जाएगी? 20 वाई। और इन दोनों का मिला के टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है वो? 1000। कितना पे कर रहा है? 1000। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या है? वेन स्टूडेंट, वेर इज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, 26 days के लिए फूड ले रहा है। ये देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से ना। फूड फॉर 26 days पेज ₹1180। ठीक है, तो एक्स प्लस 26y इक्वल टू क्या आ गया? 1180। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी? सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स और वाई मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? 1 - 2 कर देते। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिए आप, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। इधर आ जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 180 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो y इक्वल टू 180 अपॉन क्या? 6, तो 6 3 18 30 आ गया। सो y इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया। इस y की वैल्यू को लेके हम इक्वेशन में रखते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 बिकम x प्लस 20 इंटू वैल्यू ऑफ y इज 30 इन ब्रैकेट इक्वल टू दे रखा है 1000। सो x प्लस 20 इंटू 30 करेंगे तो आ जाएगा 600 इक्वल टू 1000। सो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1000 माइनस 600। सो दिस विल इक्वल टू आ गया हमारा 400। सो x इक्वल टू क्या आ गया? 400 और y इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया। तो हमारा इनकी जो वैल्यू जो आ गया, हॉस्टल का फिक्स चार्जेस कितना आ गया? x इक्वल टू ₹400 और कास्ट ऑफ फूड पर डे कितने आ गए? 30 रुपीज़ आ गए। सो ये वैल्यू को पुट कर देंगे हम, तो इन दिस वे फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस ₹x इक्वल टू आ गया 400, ये लिखा 400 एंड y का वैल्यू 30 है। सो कास्ट ऑफ फूड पर डे आ गया ₹30। therefore fixed hostel charges इक्वल टू x इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ गया? 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू y इक्वल टू रुपीज़ कितना आ गया? 30। सो क्वेश्चन इज completed. Now next question. फोर्थ का सेकंड, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction.
अब फ्रैक्शन फाइंड करना हमको। तो फ्रैक्शन को हमने लास्ट एक्सरसाइज में एलिमिनेशन में सीखा था और सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था। जब भी फ्रैक्शन क्वेश्चन आएगा तो उसमें न्यूमरेटर को हम सपोज करेंगे एक्स से और डिनोमिनेटर वाई है, तो हमारा फ्रैक्शन बिकम्स हो जाएगा एक्स अपान वाई। फिर अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो हियर आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली इन शॉर्ट because I have already done this question in our previous exercise. So suppose कर लिया हमने इसमें, suppose न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, और फ्रैक्शन जो आ गया हमारा, फ्रैक्शन इक्वल टू आ गया हमारा एक्स अपान वाई आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं कि हमको 1 सब्सट्रैक्ट करना है क्यों न्यूमरेटर से, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। आपने क्वेश्चन देख लिया ना, मैंने पढ़ा था बुक से। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, दैट इज एक्स माइनस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इक्वल टू आ गया वाई। इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड इट बिकम्स 1/4। अब कितना हो रहा है 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर तो x रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर में क्या प्लस कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, प्लस करना 8 को प्लस कर रहे हैं, तो इट बिकम्स क्या आ गया 1/4। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं वाई को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो आ जाएगा हमारा 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। सो सेकंड इक्वेशन आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अब फिर वापस हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3, इक्वेशन 1 है, और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। अब इसको फिर एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम है बट साइन भी सेम है, तो हम साइन नीचे वाली इक्वेशन का चेंज करते हैं। तो हम साइन चेंज कर रहे हैं ना, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस ये प्लस और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब 4x माइनस 3x किया तो माइनस एक्स आ गया इधर, वो इधर 3 माइनस 8 आपस में हो रहा है तो माइनस का 5 आ रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। इस x के वैल्यू को ले जाके हम इक्वेशन क्या करेंगे 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन है क्या हो गया, फ्रैक्शन इक्वल टू जो हमारा एक्स अपान वाई जो था वो 5 बाई क्या आ गया 12 आ गया, 5 बाई क्या आ गया 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, यस score 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। मतलब यश को 40 नंबर मिले टेस्ट में, जो भी क्वेश्चन उसका राइट होता है उसके लिए 3 नंबर मिलते हैं उसको, और जो भी आंसर रॉन्ग गया उसके लिए 1 मिल रहा है माइनस का। तो हर राइट आंसर के लिए 3 नंबर मिलेंगे, और जितने आंसर रॉन्ग है उसके लिए टेस्ट में उसको -1, हर रॉन्ग आंसर के लिए -1। और इन दोनों को जब लेते हैं जितने सही और गलत, तो हर राइट के लिए 3 नंबर है और हर रॉन्ग के लिए -1। तो इस तरह से करने पर उसका स्कोर आ रहा 40 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हेड 4 मार्क्स
बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि ऐसा हो कि 4 मार्क्स उसको राइट आंसर के लिए मिल जाए एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत आंसर के लिए 2 नंबर कट जाएं, देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। तो इस तरह से यस का स्कोर 50 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको पता लगाना हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो आपको पता लगाना टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। अब इसको देखिए आप। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन है ये 3rd। एक बार आपको देख लो। अब इसमें हम सपोज करेंगे कि राइट आंसर क्वेश्चन जो थे वो यस ने एक्स तो राइट किए हैं, वो वाई वाले उसने रॉन्ग किए। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं, लेट राइट आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय यस, लेट राइट आंसर क्वेश्चंस attempted by attempt attempted by यश इक्वल टू हमने एक्स ले लिया, और जो रॉन्ग आंसर थे उसको डायरेक्ट लिखा हमने। रॉन्ग जो आंसर थे, रॉन्ग आंसर क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय यश क्या ले लिया हमने, बाय यस क्या ले लिया, उसको वाई लिया। अब हर राइट के लिए कितने नंबर मिल रहे, 3 मार्क्स। तो कितने राइट हुए, एक्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3x, और हर गलत आंसर के लिए -1। तो कितने गलत हो, वाई, तो क्या आ गया -y इक्वल टू क्या आ गया, टोटल स्कोर कितना आ रहा था इसका 40, क्योंकि हर राइट आंसर के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं, हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 हो रहा था। 3x - y इक्वल टू क्या आ गया 40। फिर से देख लो आप, लेट राइट आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय यस इज इक्वल टू x एंड रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय यस इज इक्वल टू आ गया y। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, 3x - y इक्वल टू 40। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, यदि इसको हर राइट के लिए 4 मार्क्स होते तो आ जाता 4x, और हर रॉन्ग के लिए माइनस जो है 2y हो जाते, तो ये आपको स्कोर हो जाता 50। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो इसमें वैल्यू आ जाएगा एक्स और वाई को। तो अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ टेस्ट क्वेश्चन, now I am giving test, so test question. So this will question be completed done by you। थोड़ा ध्यान से करिए आप, और होमवर्क भी आपको इसी पे ही भेजना है। थैंक यू।